ये आकाशवाणी है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। You will now listen to the proceedings during the question hour in Rajya Sabha today. Question number 166, Shri K.R.N. Rajesh Kumar. Question number 166. प्रश्न क्रमांक 166। क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार देश में सड़क निर्माण के लिए जीवाश्म ईंधन आधारित बिटुमेन के स्थान पर जैव बिटुमेन के बड़े पैमाने पर उपयोग करने पर विचार कर रही है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने जैव बिटुमेन पर आधारित सड़क और फुटपाथ निर्माण के दीर्घकालिक प्रदर्शन और मजबूती का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। यदि नहीं तो क्या भविष्य में कोई अध्ययन कराए जाने का प्रस्ताव है, और देश में जैव बिटुमेन का उपयोग करके बनाई गई सड़कों और इससे संबंधित अन्य निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है, और जैव बिटुमेन का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं। Honorable Minister. श्री नितिन जयराम गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। जवाब पटेल पर रखा है। Supplementary number 1, Shri K.R.N. Rajesh Kumar. Honorable Chairman Sir, Supplementary. thank you to allow the asking the supplementary question. Honorable Minister, have any plan or consideration in future to introduce PLI, production linked incentive scheme for biobitumen production? Honorable Minister. Sir, we are the largest road network in the world. 90% of roads we are using bituminous layer, and bituminous consumption in 23-24 was 88 lakh ton. 24-25 it is expected 100 lakh ton. Total we need to import 50% of the bitumen is import, and annual import cost is 25,000 to 30,000 crore. Sir, it is the great thing that today in our country, because of the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, our farmers are now not only Annadata, they are Urja Data. Not only Urja Data, they are bitumen data. Not only bitumen data, they are now Hawaii Indian data. So this is a drastic change in the policy of the government, sir. The biobitumen is CRRI and Indian Institute of Petroleum Dehradun had developed biobitumen from Parali, that is rice straw. And because of burning of Parali, sir, we are facing air pollution problem in Delhi. Sir, 1 ton of Parali is giving 30% of biobitumen, 350 kg of biogas and 350 kg of biochar. Sir, 35% substitution, the biobitumen into bitumen is successful. The forest saving is approximately, it comes to 10,000 crore, and patent is already submitted, and the petroleum based bitumen cost is 50 rupees per kg, and biobitumen from biomass, that is Parali, coming to 40 rupees per kg. Sir, it's a good thing, sir. There are 2 technology available. Adarniya respectable Hardeep Puri ji is not here, but I am giving special thanks to him and Indian Oil Chairman. Sir, they have a project in Panipat making a 1 lakh liter of ethanol per day from Parali, rice straw. The second product is 150 ton of biobitumen per day. And the third product is 88,000 ton per year bio-aviation fuel, sustainable aviation fuel. That is to be a great thing in the history of the world, sir. And the project is completed. Sir, I want to request honorable all members. Sir, we have a Parali burning problem is creating pollution in the country. And now we have got 450 projects where we are converting Parali into bio-CNG. And we are getting the project is lignin. Sir, now my department is going to issue a notification order by which this lignin we can use in petroleum bitumen up to 35%. We have 450 projects where in Haryana, Punjab, Western UP, they are converting their biomass, Parali, into bio-CNG and now getting lignin. And now we are ready to purchase that. We are issuing the order. So it is going to not only saving our imports, but it is going to resolve the problem of air pollution. At the same time, it is useful for the farmer. The other technology is Roorkee.
We have already used the experiment in Shamli, Muzaffarnagar trial. Then second is Jorbat trial. Because of rainy season after August, the work is going to start. Now everything is proven, and now I feel that it is to be achievable that we can use parali in place of burning parali, and we will get biochar. Sir, the organic carbon is like an oxygen to the human being, is in the farming, particularly in the agriculture. Sir, I get 88 ton of sugar cane in 1 acre, 10 acre sugar. It is only because of adding organic carbon. So here we are getting biochar from that as a byproduct, and we can use it as a fertilizer in agriculture, which is going to increase the agricultural productivity, sir. Sir, it is win-win situation. Before 2070, the dream of the Prime Minister to make India as a carbon neutral economy. And for that reason, this is to be a great thing, sir. And already I'm giving thanks to Honorable Member for initiating this issue. And NHI has taken a lot of eco-friendly decisions to protect the ecology and environment. We are using fly ash. We are using 86 kilometers of bamboo crash barriers. We are using plastic, rubber, waste into bitumen. We are using steel slag. So a lot of things are with me. And it is to be a great thing for the country where we want to work, help to the power, help to the particularly farmers. And I am very much confident about it, that new experiment which Indian Oil has successfully implemented in Panipat, by which within 5 years the day will come that our aviation industry will use 20% of bio-aviation fuel, sustainable aviation fuel, and that is to be starting from Parali, and the farmer will get the rate of 2,500 rupees per ton for the Parali. Thank you. Second supplementary, Sri K.R.N. Rajesh Kumar. Honorable Minister, sir, the sanctioned amount of rupees 657.53 crore allocated to Tamil Nadu under the annual plan 2023-24 considered insufficient of this one. Whether the sanctioned amount to Tamil Nadu can be increased to around rupees 2,000 crore without any reduction for the current financial year. Honorable Minister. We don't have any problem. There is no sanction limit to annual plan. I will make the inquiry. Already my secretary has taken decision that there will be no limit. I am not giving 2,000, but I am ready to give you 5,000. My only request to you that send me the proposal with the land acquisition, utility shifting, and environment forest clearance. So I will assure here in the House, there is no sanction limit. Whatever the NHI in your state, you send your all proposal with me by completing the procedure, particularly land acquisition, ecology, environment and forest clearance, and utility shifting. I will sanction, and I want to declare that there is no limit for any annual plan. And I will take action against the officer who has taken this, because that is not correct approach. That is against the policy of the ministry. So we will take the action and we will support you. There is no problem about it. Supplementary number 3, Shrimati Ranjit Ranjan. अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूं और एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि बहुत संवेदनशील मुद्दा है, चूंकि आप सड़क परिवहन मंत्री हैं और इको फ्रेंडली काम करने की बात कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज संज्ञान ले, जो मैंने अभी 0R में कहा, जो 4 धाम योजना बन रही है, जो 100 किलोमीटर का स्ट्रेच आपका बचा हुआ है, जो इको सेंसिटिव जोन है, जो भागीरथी गंगोत्री उत्तरकाशी का, आपसे प्लीज संज्ञान लेने की रिक्वेस्ट है कि क्या उसका अगर चौड़ीकरण आप 10 से 12 मीटर ना भी करें तब भी रास्ते का आवागमन चलेगा। यही एक ऐसा स्ट्रेच है जहां पे गंगा अपने प्राकृतिक रूप में बहती है, जिसकी हम सब, जो हमारी राष्ट्रीय गंगा है। तो प्लीज क्या इसके लिए बीआरओ ने भी आपको, डिफेंस मिनिस्ट्री को, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को काफी गुमराह किया है। मैं आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद करती हूं कि क्या इसको नेचुरल इको सेंसिटिव जोन को बचाने के लिए आप इसका संज्ञान लेंगे। थैंक यू सो मच सर। ऑनरेबल मिनिस्टर, आपको जवाब से पहले थैंक यू दिया है। सर, पहला ऐसा अध्यक्ष महोदय कि ये भगीरथी सेंसिटिव जोन है एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें सुप्रीम कोर्ट में मामला था। मिस्टर सिक्ची इसके सुप्रीम कोर्ट जज है, उनके अध्यक्षता में मीटिंग हुई
और कल मेरे ऑफिस में उत्तराखंड के हमारे राज्य मंत्री और 4 सांसद इनकी भी मीटिंग हुई और इसके बारे में अभी तक काम 150 किलोमीटर चारधाम का बाकी है, बाकी काम पूरा हुआ है। अब प्रॉब्लम यह है कि 10 मीटर रखना कि कम रखना, प्रॉब्लम यह है कि दिस इज ए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज गोइंग अप टू द चाइना बॉर्डर। और सर अब इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता कि चाइना के साथ जब बॉर्डर पे जाएंगे तो हमारे रंगाड़े जाएंगे, ट्रक्स जाएंगी, तो मिनिमम 10 मीटर है। पर एक बात जिन्होंने बताई जो मेरे ध्यान में इसके पहले लगातार अध्ययन करे थे, पहले नहीं आई थी, कि हम लोग बने तक यहाँ बार बार लैंडस्लाइड हुआ है, कल अभी भी हुआ है। और इसलिए ये इसका इम्पोर्टेंस ध्यान में लेते हुए हमने 3 सूचनाएं दी है कि जो डीपीआर हमने बनाया था वो स्विट्जरलैंड के कंसल्टेंट से बनाया था, क्योंकि ये हिमालय बड़ा फ्राजिल डाटा है। तो अब हम ये काम करेंगे सर कि इसमें जहाँ पहले आवश्यकता होगी वहाँ वाइडक्ट डाल के उसको पहाड़ से दूर से ले जाने की कोशिश करेंगे। सेकंड थिंग, कंक्रीट का ऐसा कवर करके ताकि लैंडस्लाइड न हो, वो ऑप्शन हमने कुछ वो करेंगे। और तीसरा, अगर 2-4 हज़ार करोड़ ज़्यादा लगेंगे तो भी हम टनल बनाएंगे और इस इको सेंसिटिव जोन भागीरथी की पूरी रक्षा करेंगे। इसके बीच में अगर पेड़ आएंगे तो ऑलरेडी हमने ये तय किया, अभी हमने 376 करोड़ पेड़ लगाए 3 मीटर के, और करीब 78,000 हमने ट्रांसप्लांट किया। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई पेड़ काटेंगे नहीं। पर माननीय सदस्य मेरी एक बात को समझ ले कि ये चाइना बॉर्डर को जाने वाला रोड है, यहाँ कम से कम मशीनरी लेकर ट्रक जाएगी, रनगाड़े जाएंगे, तो वो भी एक सेंसिटिव बात है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करेंगे, नेशनल इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करेंगे, और जो तीर्थाटन करने जा रहे हैं उनकी भी सुविधा देखकर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके वे आउट निकालेंगे। सप्लीमेंट्री नंबर 4, महाराजा संजोबा लिसेम्बा। Sir, my question pertains to my state Manipur, sir. Sir, the ongoing construction works along the 2 national highways, that is National Highway 2, Imphal Dimapur Road, and the National Highway 37, Imphal Jiribam Road, are very slow, and the present condition of the 2 national highways are pathetically bad. Sir, what step will be taken up by the ministry to expedite the ongoing construction work and improve the 2 national highways at the earliest? Thank you, sir. Honorable Minister. Honorable Sir, already works are awarded, but we are facing very crucial law and order problem in your state. The people are not allowing the contractors to work. I have a special meeting with your Honorable Chief Minister and your officers. Sir, we are really facing a lot of problems. Some of the cases are there. Because of law and order situation, there was a lot of crucial and very sensitive problems. I will request you personally, with the cooperation of Honorable Member of Parliament from Manipur and the Chief Minister and the State Administration, let us resolve the issue and allow us to work. And before that, we will take preventive measure that how we can maintain the road. But one thing where I need your cooperation, that how we can implement the contract, because contractors are facing big losses. And therefore, we are facing problem of compensation. So by your cooperation and the cooperation of administration, state administration, we will resolve the issue. Please cooperate us. We are very much committed to complete this project. Supplementary 5, Jose K. Mani. Thank you, sir. Sir, decades ago, the Kerala state government have tried out a rubberized road, and it is found that the efficiency is good, the durability is good, and the long-lasting also. Probably it is much better than the BMBC. I would like to ask the Minister, now the farmers, the raw farmers, are facing a huge crisis because of the falling price, in spite of the huge demand, but the tire manufacturers are not ready to support them. But I request the Government of India whether the rubberized road as a major raw material and have a decision for building up national highway, this product can be included. Honorable Minister. Sir, we are already decided to use waste rubber into the bitumen. Sir, problem is that the rubber from the first source, the cost is very high. So I requested Bhupendra Yadav ji, because there was ban
on import of rubber tire, waste tire. So now already it is to be considered by the government, and by taking that waste tire, that converting into rubber powder, we are adding. Sir, I will just tell you what are the decisions taken by the ministry. The flash, 500 lakh metric ton we already used. Waste plastic, 2,834 kilometer. Rubberized bitumen, 85,000 metric ton. Polymer modified bitumen, 50,538 metric ton. Steel slag, 25.50 lakh metric ton. Soil stabilizer, 1,776 metric ton. Silica film, 1,231 metric ton. Ground granulated blast furnace slag in cement, 9.70 lakh metric ton. Geocomposite geosynthetics, 85 lakh square meter. Recycled asphalt pavement, 584 kilometer. Fiber reinforced concrete. It is an important technology we just received from Malaysia, and it is going to be saving our cost. It is 27.40 kilometer. Fiber in pavement quality concrete, 359 kilometer. Coir fiber, which is equally important for Kerala, it is 4.48 kilometer. Cement treated base and sub base, 2,465 kilometer. Micro surfacing, 595 kilometer. Slope stabilization using geogrid, 190 kilometer. And rainwater harvesting system, 12,081 numbers. Sir, we have constructed 1,000 our lake for water conservation. Sir, I received 9 deletes. Out of 5 deletes are only for agriculture science and water conservation. And this is the subject which is very much touching to my heart. So we are already very eco-friendly. And before 2070, the dream of the Prime Minister to make India carbon neutral country, we are on the way. Unfortunately, one of the bad things which is in my ministry is responsible for 40% of air pollution. And there we are now going for ethanol, methanol, biodiesel, bio-LNG, bio-CNG, electric. Today I am coming in the parliament with 100% bioethanol car, Innova Toyota car. We have hydrogen car. And our dream is, because of this fossil fuel, 16 lakh crores of import, we are facing problem of pollution. Our farmer will generate all the futuristic fuel for the country from hydrogen to ethanol, and we will reduce the pollution. That is our interest, sir. I hope your deletes get into double digit quite soon. Question number 167, Shri Digvijay Singh. प्रश्न क्रमांक 167, क्या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क विगत 3 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY के अल्पावधिक प्रशिक्षण STT और विशेष परियोजना SP घटक के अंतर्गत कितने लोगों को प्रशिक्षित और नियोजित किया गया। ख विगत 3 वर्षों के दौरान PMKVY के पूर्व अधिगम की मान्यता RPL घटक के अंतर्गत मूल्यांकित प्रमाणीकृत और नियोजन कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। ग PMKVY 1.0, PMKVY 2.0 और PMKVY 3.0 के अंतर्गत नियोजन दर क्या क्या है, तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है। घ सरकार द्वारा PMKVY 4.0 के अंतर्गत नियोजन में सुधार सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। और अंग सरकार द्वारा PMKVY 4.0 के अंतर्गत प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर श्री जयंत चौधरी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। सप्लीमेंट्री नंबर 1, श्री दिग्विजय सिंह। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं, आप देख रहे हैं प्लेसमेंट का प्रतिशत कितना कम है। 5 कौन सी ऐसी ट्रेड हैं क्रम वाइज जिनमें प्लेसमेंट अधिक से अधिक है, और उन ट्रेड्स के अपग्रेडेशन ऑफ स्किल की क्या व्यवस्था है। धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। Sir, I have a tough act to follow because my question has come after Shri Nitin Gadkari ji, and of course a senior parliamentarian is posing the question to me. I will just give me a minute, I'll give you the information because he asked a specific question on the highest number of trades. Before I come to that, sir, I'd like to talk about the placement issue that he has highlighted. Sir, you spoke about placement, let me explain. Because you have mentioned that the placement figures are low. Sir, PMKVY is our flagship scheme, and there are 2 main trainings that happen. One is the short-term training, second is the RPL, sir. So, as you can understand, half of the trainings, total 14.8 crore, 1.48 crore people have been trained under this scheme, sir.
half of that is actually RPL training, recognition of prior learning. They already have a job. So you're left with half. Out of that, 41% have actually been placed. 24 lakh people have actually are recorded as placed under this scheme. And the main thing to be noted, sir, is this is reported placement. The requirement under PMKVY 1, 2, and the third phase was that the training partner will upload the appointment letter and 3 wage slips on the SIDH portal. And then that person is reported placed. That does not mean that people outside the number are not employed, sir. They are getting gainful employment. I will point to the PLFS survey that has just come, sir. 61% of vocationally trained young people in our country are employed. So the specific question you asked, you will be happy to and be pleased to know that a lot of training and interest is being generated in future skills. The world economy, the structure of the economy is changing at a fast pace, sir. So, pan-India, in PMKVY 4, sir, electronic and hardware. Part of the answer, sir. Sir, you wanted a trade. I'm mentioning the trades. I'm mentioning the specific job role trades which are popular, sir. Honorable Minister. Electronic and hardware is the most popular, sir. Apparel, agriculture, logistics, these are popular. And for specifically the state of Madhya Pradesh, sir, in electronics and hardware, 2 lakh people have enrolled under PMKVY 4. In apparel, 78,000 people have been enrolled under PMKVY 4. In telecom, sir, 77,000 people have been enrolled. Some specific information I provided. I'll provide more details to the MP. Second supplementary, Shri Digvijay Singh. Sir, marginalized और vulnerable sections के लिए भी कुछ इन्होंने ट्रेड अंकित किए हैं. उन ट्रेड्स में मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? माननीय मंत्री जी. इन्होंने सवाल पीएमकेवीवाई का पूछा, उसके अंतर्गत भी सर इनके संबंध मेरे पिताजी से इतने अच्छे हैं कि मैं इनके आगे बोल नहीं सकता हूं. ये टोक रहे हैं मुझे. ऐसा है, उस तरीके से तो मेरे संबंध आपके पिताजी से भी थे. सुनो, नहीं, माननीय मंत्री जी, मेरे संबंध आपके पिताजी से भी हैं और आपके दादाजी का भी आशीर्वाद मैंने लिया हुआ है. जी सर, मैं इनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा. जो हमारी योजना जन शिक्षण संस्थान है, वैसे योजना 1967 से चल रही थी, दूसरे विभाग में संचालित थी. और जन शिक्षण संस्थान मुख्य तौर पर सामाजिक संगठनों के द्वारा किया जाता है. सर, ग्रेड 4 तक जो NSQF अलाइंड ग्रेड 4 हैं, वहां तक की ट्रेनिंग दी जाती है. मैं बताना चाहता हूं कि 83% लाभार्थी जन शिक्षण संस्थान में महिला हैं. सर, SC और ST वर्ग के लोगों को ज्यादा प्राथमिकता दी गई है. बुनियादी तौर पे जो गांवों में गरीब परिवार के जो लोग रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया गया है. सर, और अलग अलग ट्रेड में अलग अलग क्वालिफिकेशन है. 5th क्लास ऑनवर्ड्स ग्रेजुएट होने तक जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसने कहा है कि शिक्षा व्यवस्था को आप कौशल विकास से आप जोड़ेंगे. 6th क्लास ऑनवर्ड्स हमने सेंसिटाइज किया है और कौशल विकास के जो संस्थाएं उनको स्कूली व्यवस्था से जोड़ा है. सर, सप्लीमेंट्री नंबर 3, श्री M. मोहम्मद अब्दुल्ला. Thank you, Chairman, sir, for permitting me to ask a supplementary question. Sir, whether it is a fact that no report has been published analyzing the efficiency and quality of STT and RPL courses under PMKVY so far? Honorable Minister. I would like to point out that even in 2019, sir, we did a impact assessment, and it is not the case that we are not constantly evaluating the progress of our schemes and the impact of our schemes. And there was a high rate of satisfaction in the survey was found. People who were surveyed said that it helped them gain employment, it helped them gain a new skill, it helped them rise in their organizations. Supplementary number 4, Shri Sujit Kumar. My query was regarding JSS, Jan Shikshan Sanstha, and Honorable Minister has already answered that in the previous supplementary, so I'm satisfied with that. Thank you.
Honorable Minister. Sir, is satisfied? No, you can express your happiness. You can express your happiness. Same sentiment is echoed in the House, sir. All right, go ahead. This will be taken as supplementary number 4. Wait for my Sir, the promotion of the skill development is very essential for national development. So the union government should provide the financial and technological assistance to every state irrespective of the political affiliation of the ruling party of the state government. Sir, but as one goes through the document, we find the unequal distribution of money and assistance to the states. Minister told us that during the last 3 years, 1.47 lakh and 0.26 lakh candidates have been trained and reported placed respectively under special projects. My question is whether the government can provide the data, provide the state-wise data of expenditure, of skill development, number of training centers, and the number of students in each center. This is my question, sir. Honorable Minister. Sir, the Honorable Member has asked for specific query on data state-wise. I shall provide it to him. But I'd like to point out that there is a digital public infrastructure that has been created. Last year it was inaugurated, sir, SID, Skill India Digital Hub. And recently the G20 task force in India reported that the impact of DPI in our developmental progress is huge. India has achieved in 10 years what it would have normally taken 50 years to achieve. So on SID, sir, our entire ecosystem is visible. More than 34 schemes of 22 central government ministries are visible there, sir. More than 95 schemes for skilling run by our state governments are visible on that. If the Honourable Member would like to see what is the skilling ecosystem doing, what are the training partners, what are the courses available in his constituency, in his block, close to his village, that is also accessible to him via SID. Thank you. Fifth supplementary, Dr. Fozia Khan. Thank you, sir. Sir, as per the National Skill Development Corporation, when it comes to placement assistance, after short-term training under PMKVY, 64% of STT trained and certified and 78% of STT trained but not certified reported unsatisfied. Also, around 55% of the participants in this program were looking for employment and were unemployed. Only 47% of STT trained and certified respondents and 27% of STT trained but not certified reported working in the domain of their STT training. So I want to know why the results are so low and what steps is the government taking to improve this situation? Honorable Minister. Sir, I'd like to place before the House, in the third phase of PMKVY, as you know, the country was going through COVID. And about 43% of those placed in the PMKVY third phase, 43%, the kind of skilling we were doing, the trainings we were doing, was oriented towards COVID warriors, oriented towards our laborers who are now fleeing urban centers and migrating back to their homes. That is why that particular figure for that particular phase is lower than what you might have imagined. I'd again reiterate, sir, don't just go by this data that we have put in the House. There is a larger ecosystem there. The mandate given to me, the mandate given to our ministry, and the enormous challenge before us is how we can re-engineer our systems, our protocols, our schemes, to make them better aligned to the market, sir. It has to be demand-driven. It has to be driven by needs of industry. And therefore, we are providing a lot of flexibility to our training partners, sir. Earlier, in the three phases, like I mentioned, recorded placement was being noted. Now, sir, people may be getting a job, and that data might not be visible with us. Thank you. Question number 168, Shri Ashok Rao Shankar Rao Chauhan. अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन नंबर 168। प्रश्न क्रमांक 168। क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क तटीय सुरक्षा योजना
सीएसएस के अंतर्गत तटीय निगरानी के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा की गई 14 नौकाओं में मांग के संबंध वर्तमान स्थिति क्या है? ख, क्या सरकार ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी है? ग, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और राज्य सरकार के प्राधिकारियों को उक्त नौकाएं उपलब्ध न कराए जाने के क्या कारण हैं? घ, क्या महाराष्ट्र सरकार ने सीएसएस के चरण 2 और चरण 3 के अंतर्गत अधिक नौकाओं की मांग की है? और अंग, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? ऑनरेबल मिनिस्टर श्री नित्यानंद राय, गृह राज्य मंत्री। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री अशोक राव शंकर राव चौहान। Honorable Chairman, sir, this is a very important question relating to our internal security of a country and definitely our effort against fight against terrorism. We cannot forget the 26/11 tragedy that struck our country when our financial capital Mumbai was attacked by terrorists, and this attack was sponsored by none other than our neighbor Pakistan. That dastardly terrorist attack was planned across the border and executed here on our soil. The terrorists who had attacked Mumbai, everybody knows that after the investigations has come out, was through the sea route. In the afterwarmth of that terrorist attack, it was decided that maritime security of our country would be enhanced, continuous vigilance and patrolling of our sea coast, modernization of state police, coastal police and coast guard would be given a priority. I'm just coming to that. Chairman, sir, the answer given in today's question is rather more technical than more specific as I had requested. Because it says that 28 boats have been given to the state government in phase 1. Sir, your supplementary. Yeah. Chairman, sir, the state government has sent a proposal, whereas the answer is that in phase 2, there is no provision or there is no, it has been concluded and there is no question of implementing the phase 2. The government of Maharashtra has sent a proposal that in order to enhance the security and maritime security and coastal security scheme, under this scheme, additional boats have been demanded from a long time. I would urge upon the minister that in view of the threat to the coastal states, especially Mumbai, where we had seen the 26/11 attacks and similar threat perception also exists in other states also, will the Honorable Minister consider, irrespective of phase 2, phase 3, whatever it is, give a highest priority to Mumbai and sanction the additional boats which have been demanded by the state government and even not only sanction it, immediately see that they are made available to the state government so this proposal is considered highest priority. Honorable Minister. माननीय सदस्य ठीक ही कहे कि 26/11 का वह आतंकवादी हमला जो मुंबई में हुआ था, वास्तव में वह काफ़ी दुखद था और सावधान होने के लिए और चुनौतियों का सामना करने के लिए वह एक बड़ा सबक भी हम सब लोगों के लिए था। जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के शपथ ग्रहण के साथ ही तटीय सुरक्षा को हम सुनिश्चित करें, इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, लेकिन माननीय सदस्य द्वारा जो महाराष्ट्र और मुंबई के संदर्भ में कहा गया, सर सीएसएस योजना चरण के दौरान जो भी संपत्तियां उसके साथ जो नौकाएं राज्यों को दी गई थी, उसकी एक समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि राज्यों द्वारा नौकाओं का समुचित उपयोग तकनीकी जनशक्ति की कमी के कारण तथा समुद्री यात्रा क्षमता के अभाव और रख रखाव के अभाव में नहीं हो पा रहा है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया कि महाराष्ट्र राज्य के लिए जो प्रस्तावित 14 नौकाएं थी और उसके साथ साथ अन्य राज्यों और यूटी के लिए भी 225 थी, उस नौकाओं की खरीद की आवश्यकता तत्काल नहीं है और वह आगे इस निर्णय के साथ आगे बढ़ा। लेकिन महोदय, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा सदन को भी, देश को भी और माननीय सदस्य को भी कि समग्र तटीय सुरक्षा के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है। 3 बैठकें उसकी हो चुकी है और सभी हितधारकों से परामर्श किया जा रहा है और यह समिति बहुत ही तत्परता के साथ विचार कर रहा है। विचाराधीन यह समिति के अंतर्गत सारे तत्व हैं और स्टेक होल्डरों के परामर्श भी बहुत मुस्तैदी से किया जा रहा है। महोदय, तटीय सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री अशोक राव शंकर राव चौहान।
सभापति जी, अभी जो जवाब दिया है मैं उससे सहमत नहीं हूं, इसलिए कि मामला बहुत गंभीर है। स्टेट के पास अगर एडिक्वेट ट्रेनिंग वाला इशू है तो ट्रेनिंग तो इशू कोई सीरियस नहीं हो, वहां पर स्टेट इम्पार्ट कर सकती है। पर अचानक कोई घटना घटी जब हमारे पास में अवेलेबिलिटी ऑफ बोट्स ना हो, ये कोस्टल एरिया का इशू है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले इसको टॉप प्रायोरिटी दे। ट्रेनिंग तो स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कर सकती है। सभापति महोदय, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर provides financial assistance and weapons equipments under the scheme for modernization of state police force. ये जो state की modernization होती है उसमें government of India gives a lot of money for various states. How much assistance has been asked and provided to the Maharashtra government by the Ministry of Home Affairs, and would the MHA enhance and ensure timely disbursement of the funds which have been allotted to Maharashtra? Honorable Minister. महोदय, एक तो जो प्रशिक्षण की चिंता व्यक्त की गई, सरकार ने तटीय सुरक्षा के संदर्भ में एक प्रशिक्षण अकादमी ओखा जो अहमदाबाद में है 441 करोड़ के प्रावधान के साथ उसको प्रारंभ किया है और उसके अच्छे भी परिणाम आ रहे हैं। और जहाँ तक वित्तीय सहायता की बात है महोदय, तो मैं उसको प्रकार में जरूर महोदय को बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के संदर्भ में, ऐसे देश के संदर्भ में भी अगर जानने के लिए अगर उनकी कोई अगर विचार आता है तो मैं बताऊँगा, लेकिन महाराष्ट्र के लिए भी 19 तटीय पुलिस स्टेशन और 32 चेक पोस्ट स्वीकृत किए गए और 28 नावें, 32 जीप और 71 मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई गई। सब में सर पैसे लगते ही हैं। 14 जेटियों के उन्नयन के लिए 64 करोड़ 58 लाख रुपए अतिरिक्त धनराशि दी गई है महाराष्ट्र को। 24/7 निगरानी के लिए 5 रडार स्टेशन, 1 रिमोट ऑपरेशन और 1 क्षेत्रीय परिचालन केंद्र स्थापित किए गए हैं और कई रेडार स्टेशन बनाए जा रहे हैं। भारतीय तटरक्षक बल के साथ संयुक्त गश्ती भी की जा रही है। 820 सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। पूरे तटरक्षा की डिजिटल मानचित्रण कर इंसिडेंट मैनेजमेंट तथा संपत्ति प्रबंधन द्वारा प्रतिक्रियाएं भी बेहतर की जा रही है। कोस्टल पुलिस की ट्रेनिंग की भी समुचित व्यवस्था की गई है। रक्षा मंत्रालय द्वारा तटीय निगरानी नेटवर्क तथा राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता परियोजना का भी क्रियान्वयन हो रहा है। तो इस प्रकार से निश्चित रूप से हम राज्यों को इस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं महोदय। और महोदय ने सांसद महोदय चिंता कर रहे थे कि हम यह बड़ा विषय है, तो मैं राष्ट्रीय स्तर पर अगर आपकी अनुमति होगी तो क्या कदम उठाए जा रहे हैं मैं बता सकता हूं महोदय। क्षमता वृद्धि 58 चौकियों के साथ साथ 204 समुद्री पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए। मैं जो अपना 11,000 किलोमीटर की जो कोस्टल एरिया है उसके लिए बता रहा हूँ सर। 800 से अधिक वाहन दे दिए गए हैं। प्रशिक्षण के विषय में हम बताएं कि 441 करोड़ से प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। निर्बाध संचार व्यवस्था, संचार प्रणाली कंप्लांट की मंजूरी महोदय की गई है। समुद्री रक्षा के लिए बहुत जरूरी होती है कि जो हमारे गैप्स होते हैं या जो सुरक्षा के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसमें हम टेक्नोलॉजी नेटवर्क को स्थापित करके हम उसको सर सुदृढ़ बनाते हैं। संयुक्त तटीय अभ्यास जो बहुत जरूरी है वह महोदय किया गया है। मानक संचालन प्रक्रिया की गई है और 200 से 4 कुल नौकाएं की क्षमता जो है वह 12 टन की और 5 टन की यह तो उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन त्रिस्तरीय व्यवस्था है अपने तटों की रक्षा की और समुद्री सीमाओं की। उसमें नेवी बहुत ही संसाधन संपन्न होकर और अभी जितने आविष्कार और निर्माण अपने समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए केंद्र सरकार
उठाई है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके विजन में, उसके साथ जो कोस्ट गार्ड है उसको भी सुदृढ़ कर रहे हैं और कोस्ट गार्ड को भी नौका के साथ साथ जो जहाज दे रहे हैं उस पर हेलीकॉप्टर से लेकर हम किसी भी दुश्मन के या वैसे कोई बाहरी तत्व जो राष्ट्र विरोधी है आए तो उससे हम निपट सकते के इतना सक्षम बनाया गया। साथ साथ जो मेरीन पुलिस है जो राज्य देखती है, राज्यों के लिए भी हम लोग आग्रह करते हैं और मेरीन पुलिस के लिए भी हम सहयोग यहाँ से कुछ मदों में हम जरूर उपलब्ध कराते हैं। तो हम हर प्रकार से स्तरीय तटीय सुरक्षा को समग्रता लाने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए और सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यह सरकार संकल्पित है। सप्लीमेंट्री नंबर 3, श्री संतोष कुमार पी। Thank you, sir. Sir, we have 5 Coast Guard regions now: Gandhinagar, Mumbai, Chennai, Kolkata, and Port Blair. This Kochi Ponnani region in Kerala must be declared as a Coast Guard region. So I would like to ask the Minister through you, sir, what prevents you from declaring Kochi Ponnani as a Coast Guard region? This is specially required in view of the increasing challenges to the South Indian ports. Honorable Minister. महोदय, अंतर्राष्ट्रीय जहाज और बंदरगाह सुविधा सुरक्षा के जो कोड बने हैं उसके अंतर्गत हम निर्धारण करते हैं, लेकिन भारत में अभी प्रमुख बंदरगाह 12 हैं और 239 गैर प्रमुख बंदरगाह हैं। तो एक सिस्टम के तहत हम बंदरगाह या हम उसको तटीय तट, समुद्री तट को किसी भी रूप में रेखांकित करने के लिए जो हमारे नियम बने हैं और जो उसके रूल्स है उसके हिसाब से हम विचार करते हैं। सप्लीमेंट्री नंबर 4, श्री मिलिंद देवड़ा। थैंक यू सर। सर, मुंबई और भारत 26/11/2008 को कभी नहीं भूल सकती है और पिछले 13 वर्षों में मुंबई में कोई भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ है। इसका श्रेय मैं कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम जैसे योजनाओं को देना चाहूँगा। बट सर, कीपिंग इन माइंड the instability, growing instability in our immediate neighborhood, the fact that India has a 7,500 kilometer coastline. The Honorable MP before me asked a question about Kerala. Many states have large capitals that can be soft targets for terrorists. My question to the Minister is, in addition to funds, is the Government of India also working with coastal states that are potentially vulnerable and their coastal wings of their police to give funds, to give equipment, but to also conduct joint drills and joint exercises to make them ready for the future? Honorable Minister. महोदय, अगर कोई भी राष्ट्र विरोधी तत्व भारत को लक्षित करने की कोशिश करता है तो वह हमारे लक्ष्य से बाहर नहीं जा सकता है। हम उसको मुंहतोड़ जवाब देते ही नहीं है, उसको नष्ट भी करते हैं। और महोदय, 13 वर्षों में निश्चित रूप से चाहे वह हिंटरलैंड हो, चाहे समुद्री क्षेत्र हो, चाहे हमारे भूमि की सीमाएं हो, उस पर जो सैन्य शक्ति बढ़ी है और सरकार जो इस 10 वर्षों में अपनी सुरक्षा की नीति अपनाई है उसका परिणाम है। प्रशिक्षण महोदय हम दे रहे हैं, जैसा पहले बताया है कि ओखा में जो एकेडमी हम लोगों ने स्थापित किया है और ज्वाइंट कोस्टल एक्सरसाइज करते हैं सर उसमें हम लोग, जिसमें सभी हम उसमें राज्य की मेरीन पुलिस होती है, कोस्ट गार्ड होती है और नेवी के भी उसमें भूमिका होती है। साथ साथ महोदय, हम जब कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज के साथ साथ हम कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था भी किए हैं कि हम किस प्रकार से जो जिसके पास जो संसाधन है और जो अधिकार जो क्षेत्र जिसके जिसके हैं, जो राज्यों के अधिकार में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में आते हैं, हम उसके साथ कोऑर्डिनेशन करके हम सभी संसाधनों का उपयोग करते हैं और तटीय सुरक्षा हम प्रदान महोदय करते हैं। फिफ्थ सप्लीमेंट्री, श्रीमती रजनी अशोक राव पाटिल। धन्यवाद सर। आपके द्वारा मैं पूछना चाहती हूँ मंत्री महोदय से कि गवर्नमेंट कौन सी ऐसी व्यवस्था बना रही है कि जो इस तरह से अटैक होते हैं, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो, सुनामी जैसे, या टेररिस्ट अटैक हो, जैसे 26/11 भी हमारे मुंबई में हुए, तो गवर्नमेंट कौन से स्टेप्स ले रही है जो लाइवलीहुड
और हमारे जो लाइफ जाते हैं, जो जाने जाती है, जीवित हानि होती है, उसके लिए क्या गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है? माननीय मंत्री जी, महोदय, माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन आपने बहुत विस्तार से बताया कि आप सुरक्षा के लिए क्या कार्य कर रहे हैं। माननीय सदस्य का प्रश्न है कि इसमें जो आहत होते हैं या जान गंवाते हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? यही है ये स्पेशल। महोदय, एक तो कि आपदा के संबंध में और सिक्योरिटी के संबंध में अलग अलग दो सेक्टर हैं। हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए हो या फिर सीमा की सुरक्षा के लिए हो, जो हमारे जवान शहीद होते हैं उनके लिए हम अलग अलग उनको पहले की अपेक्षा हम काफी हर प्रकार से उनको सम्मान, उनके परिवार को सम्मान के साथ साथ उनको हम बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से हम उनको लाभ पहुंचाते हैं और यह एक राशि के रूप में देखा जाए तो बड़ी राशि होती है। आपदा प्रबंधन राज्य का सब्जेक्ट है महोदय, फिर भी हम लोग अपनी जिम्मेदारी से भागते नहीं है और हमारे यहाँ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ फंड का प्रावधान किया गया है। अब तो वह फंड एक क्वेश्चन से जुड़ा हुआ नहीं, लेकिन आसन का आदेश हुआ महोदय, तो अब उसमें जो हम फंड पहले ही हम राज्यों को उपलब्ध करा देते हैं, जो केंद्र का शेयर होता है, ताकि आपदा की स्थिति में वह किसी भी क्षण उसका उपयोग करे जो नॉर्म्स है उसका, और उसके हिसाब से वह आपदा की स्थितियों में जान माल की जो नुकसान होती है या जो प्रावधान के अंतर्गत आता है उसको वह फायदा पहुंचा सके। ऐसी घटना तो दुखद होती ही है, फिर भी अगर घटनाएं घटती है तो उसके लिए सरकार ने इस प्रकार का दूसरा एनडीआरएफ से सहयोग करते हैं। कुछ उस प्रकार की स्थिति आती है तो सेना लगती है, एनडीआरएफ लगती है, हम सब मिलकर, स्टेट की एसडीआरएफ भी होती है, सब मिलकर हम आपदाओं का प्रबंधन भी करते हैं और सरकार बहुत आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में तत्पर है। और नुकसान जो होता है उसके लिए पहले तो राज्यों के डिमांड से महोदय तब यहाँ से टीम जाती थी, अब तो राज्य नहीं भी डिमांड करती है तो भेज देती है और हम उसकी समीक्षा करते हैं और जितना होता है केंद्र सरकार सहयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 169 श्री विक्रमजीत सिंह साहनी। 169। प्रश्न क्रमांक 169। क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विशेषकर शहरों में कुछ निजी शिक्षण संस्थानों में नर्सरी से स्नातकोत्तर तक की फीस बहुत महंगी है? क्या सरकार निजी स्कूलों और कॉलेजों के लिए शुल्क विनियमन संबंधी कोई कानून लाने और संस्थानों और नागरिकों दोनों के लिए इसे युक्ति संगत बनाने की योजना बना रही है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है? क्या मंत्रालय ने स्कूलों और कॉलेजों द्वारा प्रदान की जा रही शिक्षा और अन्य सुविधाओं और उन संस्थानों द्वारा ली जाने वाली फीस का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है? और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है? ऑनरेबल मिनिस्टर श्री जयंत चौधरी, शिक्षा राज्य मंत्री। जवाब सभा के पटल पे प्रस्तुत। Supplementary number 1, Shri Vikramjit Singh Sahni. Sir, under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009, every single child in India of the age of 6 to 14 years have the right to free and compulsory elementary education in the neighborhood school. इस एक्ट के प्रावधान में भारत का हर बच्चा जो 6 से 14 साल का है उसको फ्री और कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन का प्रावधान किया गया है। मैं ऑनरेबल मंत्री जी से पूछूंगा कि कितने प्रतिशत बच्चे इसमें कवर्ड हैं और अगर 100% कवर्ड नहीं है तो क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। चेयरमैन साहब, जब विक्रमजीत जी खुद एजुकेशन में बहुत इनका बड़ा योगदान है और इनके नाम से जब प्रश्न आया फी नियंत्रण को लेकर तो मुझे थोड़ी आशंका हुई कि इन्होंने इनके आजू बाजू बैठते हैं माननीय सदस्य, उनसे पूछा है कि नहीं। इन्होंने आरटीई की बात की है सर, और मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहूँगा 2009 से एक कानून सदन ने पारित किया है और अधिकार दिया है, गरीब बच्चों का ख्याल हमें रखना है, सरकार की प्राथमिकता है। और विभिन्न तरीके से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, क्योंकि वो एक समावेशी योजना है, जो लोग वंचित रह गए, जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से बाहर हो गए किसी कारण, उनको भी वापस लाने का प्रावधान है। और समग्र शिक्षा में हम क्योंकि एक्सेस देना चाहते हैं, यूनिवर्सलाइज करना चाहते हैं, बाल वाटिका की 3 कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक उसमें अलग अलग स्तर पे काम हो रहा है सर। आरटीई का विशेष इन्होंने पूछा, जो उन्होंने डेटा मांगा है कि कितना क्रियान्वयन हुआ। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, क्योंकि इनकी सरकार पंजाब में है,
और इनकी बड़ी जिम्मेदारी दल में भी प्रयास करें, राज्य सरकार से प्रयास करें, क्योंकि पंजाब सरकार ने 2 टूक मना कर दिया। आज इनकी सरकार है, इससे पहले कांग्रेस भी रही है सरकार में। पंजाब ने 2 टूक मना कर दिया कि हम आरटीई को जो 25% प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स में कोटा है गरीब बच्चों के लिए, उन्होंने कहा कि हम प्रावधान नहीं कर सकते, हमारे यहाँ पर्याप्त है सरकार। तो मेरा निवेदन होगा, साथ साथ और भी राज्य, सर केरल ने नहीं लागू किया, तेलंगाना ने लागू नहीं किया, वेस्ट बंगाल ने लागू नहीं किया। तो आज सदन में मैं अपील करना चाहता हूं सर, ताकि कोई भी जो लाभार्थी है, जिस उद्देश्य से ये कानून बना है, जो अधिकार है, कोई भी उससे वंचित न रहे। सेकंड सप्लीमेंट्री। मंत्री जी, मेरा प्रश्न 25% प्राइवेट एडेड के लिए नहीं था। मेरा प्रश्न था 6 से 14 साल बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्वेश्चन मैं और पूछा, आंसर और आ रहा है। इट इज योर ओनर्स ना, एज ए चेयरमैन जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब लीजिए ना। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि जो 2009 में एक अच्छा कानून बना, उस कानून को लागू करने में बाधा आ रही है, उसका आपने जो पूछा उस पर भी असर पड़ रहा है। सेकंड सप्लीमेंट्री। और मैं मंत्री जी ने क्योंकि कहा कि हम एजुकेशन से जुड़े हैं, मैं पार्लियामेंट के फ्लोर में कहना चाह रहा हूं कि जो भी हम जाति तौर पे मैं काम एजुकेशन में कर रहा हूं, फ्री ऑफ चार्ज कर रहा हूं, 1 रुपया भी नहीं लेता। दूसरा क्वेश्चन, वी अप्रिशिएट सेक्शन 12(1)(c), आप देखिए साहब, मंत्री जी को भी पता है, और जो भी मैं डिस्कशन कर रहा हूं ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, आई एम ए नॉन पॉलिटिकल। हाँ जी, तो ये केजी से पीजी तक लाखों रुपया बच्चे की एजुकेशन पे खर्च होता है। आपको पता, केजी को छोड़ दीजिए, प्री नर्सरी में लाखों रुपया फीस है। तो साहब ये 25, मैंने एस्टिमेट लगाया आज 25 से 30 लाख रुपया खर्च होता है नर्सरी से आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बन गए। उसके बाद ये जो रेगुलेशन ऑफ फीस है, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हायर एजुकेशन है, आपको पता मेडिकल एजुकेशन में बच्चे उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोई प्रावधान ही नहीं है, कोई निजाम ही नहीं है, जो मर्जी फीस चल रही है। तो इसके लिए मैं आदरणीय मंत्री जी से पूछता हूं। थैंक यू। जवाब नहीं दूंगा, जवाब बिल्कुल सीधा है। एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आता है, राज्यों की इसमें बड़ी भूमिका, भागीदारी और जिम्मेदारी है। कई राज्यों में इस संबंध में फी नियंत्रण को लेकर कई राज्यों ने प्रयास भी किए हैं, नीतियां भी बनाई हैं। और जहां तक हायर एजुकेशन की बात है, मेडिकल एजुकेशन को छोड़ करके यूजीसी ने और सरकार ने डीरेगुलेट कर दिया है सर। और इससे अलग अगर मैं एक आंकड़ा रखना चाहता हूं, क्योंकि इनका थ्रस्ट, मेन क्वेश्चन का थ्रस्ट ये है कि गरीब लोगों को हम क्या उनके लिए कर रहे हैं ताकि वो शिक्षा के व्यवस्था से जुड़ पाए। सर, एक काम ये होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश बढ़ना चाहिए, राज्यों ने भी बढ़ाया है और पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने भी दुगना कर दिया है सर। जो शिक्षा का बजट था 2014 में 68,000 करोड़ था और अभी बजट में आपने देखा है कि 1,20,000 करोड़ तक पहुंचा। थैंक यू। सप्लीमेंट्री नंबर 3, श्री प्रमोद तिवारी। आभारी हूं आपका। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, यूपीए राइट टू एजुकेशन लेके आई। यूपीए सरकार राइट टू एजुकेशन लेके आई। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि आज 10 साल की सरकार तो चल चुकी केंद्र में, कितने प्रतिशत बच्चे अभी ऐसे हैं गरीबों के जिनको ये शिक्षा नहीं मिल रही है, जैसा यूपीए गवर्नमेंट ने एक्ट बना दिया, राइट टू एजुकेशन कर दिया, क्या उस संख्या बताने की कृपा करेंगे? माननीय मंत्री जी। श्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री। आदरणीय सदस्य ने यूपीए की कार्यकाल की याद दिलाया, आपने भी उसको रिकॉग्नाइज किया। आदरणीय मंत्री जी ने पहले प्रश्न में कुछ उसकी स्पष्टता भी रखी। आज के दिनों में क्लास 1 की एंट्री में लगभग 100% एनरोलमेंट है। सभी राज्यों की यह सफल प्रयास है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ता है, अन्य राज्यों के विषय उन्होंने मंत्री जी ने खुद भी कहा कि कॉन्करेंट लिस्ट में तो राज्यों की काम है, स्कूली एजुकेशन मूलतः राज्य की विषय है। जिस राज्य में जिस प्रकार की प्रयास है उस प्रकार के आगे बढ़ा है। मैं फिर आज मेरे सहयोगी मंत्री जैसे अपील किए हैं, सभी राज्यों ने राइट टू एजुकेशन और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये दोनों परिपूरक है। इन दोनों के माध्यम से 70% बच्चे 12वीं तक पढ़ें,
ये सभी के दायित्व बनता है। आरटी में आपने एक अच्छा प्रोविजन उन दिनों में सोचा गया था कि निजी स्कूल भी 25% पढ़ाएंगे बच्चों को, उसकी रिम्बर्समेंट भी सरकार चिंता करेगी। अभी तक जिन जिन राज्यों के नाम आदरणीय मंत्री जी ने लिया, उन राज्यों को इस सदन के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे, सभी लोग उसमें हाथ लगाएंगे तो उपलब्धि होगा। एंट्री लेवल में तो हो गया है, 12वीं तक ये अभी होना बाकी। सप्लीमेंट्री फॉर सुश्री स्वाति मालीवाल। सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। यस मैम, योर सप्लीमेंट्री। सर, आज हालात ये हैं देश के कि ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स मुनाफाखोरी के अड्डे बन गए हैं। सर, हद तो ये हो रखी है कि इन स्कूल्स ने अपने ही जगह पे दुकानें खोल ली हैं और उन दुकानों में किताबें, कॉपी, पेंसिल, यूनिफॉर्म पेरेंट्स को हायर प्राइस पे खरीदने पे मजबूर किया जाता है। अलग अलग फंड बना दिए हैं सर, कोई डेवलपमेंट फंड बन गया है, कोई एक्टिविटी फंड बन गया है, लूट मचा रखी है। बच्चे इनके लिए एटीएम मशीन जैसे बन गए। सर, मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपने राज्यों को आदेश दिए हैं कि इन सारे स्कूल्स के ऑडिट्स हों जिससे कि ये मुनाफाखोरी बंद हो? और दूसरी बात, ये जो स्कूल्स फोर्स करते हैं पेरेंट्स को हायर प्राइस से पे, मतलब जूते का ब्रांड भी यही डिसाइड करते हैं, ये जो हायर प्राइस पे खरीदने के लिए मजबूर करते हैं, सर इनके खिलाफ क्या क्या एक्शन हो सकता है और सरकार क्या कर रही है? सर, as a matter of fact, you have rendered the reply, but be specific now. It is in concurrent list. State governments have to think within. Honorable Minister. सर, मैंने पहले भी जवाब दिया कि कुछ राज्यों ने प्रयास किया है और दिल्ली में 2015 में दिल्ली स्कूल एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ है, तो माननीय सदस्य उसको भी जरा मॉनिटर करें कि दिल्ली में किस प्रकार से अगर स्कूल ज्यादा फीस ले रहे हैं तो दिल्ली सरकार इस पे कदम उठा सकती है। ऑनरेबल मिनिस्टर। देखिए सर, कुछ सरकारी स्कूल होते हैं, कुछ निजी मैनेजमेंट के द्वारा संचालन वाले स्कूल होते हैं। यह कहना शायद उचित नहीं होगा, सारे निजी स्कूल प्रॉफिटियरिंग के लिए काम करते हैं। इस देश में अनेक सामाजिक संगठन है, अनेक गुरुद्वारे हैं, अनेक चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, विद्या भारती जैसे संस्था है जिन्होंने अपने आप में श्री अरविंद की दुनिया है, रामकृष्ण मिशन जी की दुनिया है, ये सारे स्कूल्स भी अच्छे काम करते हैं। लेकिन ये बात सही है, कुछ प्रॉफिटियरिंग वाले लोग स्कूली एजुकेशन में आए हैं, ये राज्यों को संभालने की आवश्यकता है, राज्य उसमें कड़ी कानून कार्रवाई करे, भारत सरकार उनके साथ रहेगा। सप्लीमेंट्री नंबर 5, डॉक्टर जॉन ब्रिटास। Thank you, sir. Sir, the biggest paradox is that Kerala has taken sermons from Delhi with regard to education. Sir, the supplementary question is that Honorable Minister knows it very well that the aided schools in Kerala is as good as the government schools. Is it the supplementary? Yes, sir. In this context, will the minister consider including the aided schools of Kerala under Samagra Shiksha? Honorable Minister. Chairman sir, definition of aided school are varies from state to state. Somewhere it is privately managed institution, some portion of government aid is given, is known as aided school. In some states, schools are totally run by government, but somehow nomenclature is aided. So there is no uniformity. Now Government of India is trying to create a uniformity, which are the government school, which are the private school. This is a separate question. If honorable member from Kerala want to specific information. Thank you. Question number 170, we can share Imran Pratapgadi. 170. Sir, 170. प्रश्न क्रमांक 170, क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क ग्रामीण भारत में शिक्षा की गुणवत्ता के संबंधित एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर 2023 के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं? ख सरकार द्वारा उक्त रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार शिक्षण के नतीजों में सुधार लाने के लिए क्या पहल की गई है? ग विशेषकर मूलभूत सुविधाओं की कमी वाले क्षेत्रों के ग्रामीण विद्यालयों में अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं? और घ सरकार ने शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार करने और ग्रामीण विद्यालयों में समुचित शिक्षक छात्र अनुपात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? ऑनरेबल मिनिस्टर। फर्स्ट सप्लीमेंट्री सर। क्वेश्चन आवर ओवर। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट came to you from the Delhi station of Akashvani.